नमस्ते बच्चों। आज हम लोग एक कहानी पढ़ते हैं। आओ धरती को स्वर्ग बनाएं। कम लेट्स मेक दिस वर्ल्ड एज ए पैराडाइज। पिकनिक पर चलने से पहले अध्यापिका का अर्थ होता है मैडम। अध्यापिका ने बच्चों को समझाया था कि कोई भी बच्चा उन्हें तंग नहीं करेगा। Before going to picnic, Madam told all the children that nobody will do any mischief or naughty thing and nobody will bother her. बस में शरारत नहीं करेगा। At bus, nobody will do any mischievous thing. जो बच्चा अच्छा काम करेगा उसे पुरस्कार मिलेगा. If any child will do something good, she or he will get prize. सभी बच्चे बहुत खुश थे. All were very happy. आज तो उन्हें पढ़ना नहीं, खेलना था. Today they are not going to learn anything, just play. खाते पीते खेलते कूदते समय का पता ही नहीं चला. They were eating and playing and the time passed like anything. अध्यापिका ने सब बच्चों को इकट्ठा किया. इकट्ठा मीन कलेक्ट. इकट्ठा किया और बस में बिठाकर वापस स्कूल आई. अध्यापिका मीन्स मैडम collected all the children and they sat in the bus and they came to the school. They came back to the school. खुशी खुशी सब बच्चे अपने माता पिता के घर चले गए. Happily they all went to their parents' house. फिर अगले दिन नेक्स्ट डे प्रार्थना सभा मीन्स असेंबली में प्रधानाचार्य मीन्स प्रिंसिपल मैम ने बच्चों से पूछा. Next day at assembly, principal ma'am asked to the children, क्या सब बच्चों को मजा आया? पिकनिक कैसी रही? You all had fun. How was the picnic? सब ने जोर से कहा, बहुत मजा आया. ऐसी पिकनिक हर सप्ताह होनी चाहिए. Everybody loudly answered, yes, we enjoyed a lot. This type of picnic should be there for every week. ठीक है, हर सप्ताह तो नहीं, पर हाँ, महीने में एक दिन तो आपको पिकनिक पर ले जाया जा सकता है. Then principal ma'am says, okay, not every week, but yes, once in a month we can take you for this type of picnic. यह सुनकर बच्चों ने खुशी से तालियां बजाई. When children heard this, they clapped with lot of happiness. बच्चों को शांत करते हुए प्रधानाचार्य ने याद दिलाया कि उन्होंने बच्चों से कुछ कहा था. While telling them quiet, principal ma'am reminded all the children that she told everybody something. पिकनिक की मस्ती में तो सब बच्चे भूल गए थे. During picnic, everybody forgot the same. अचानक प्रधानाचार्य ने कहा, सुरभि इधर आओ. तुमने वह काम किया जो
अच्छे बच्चे भी नहीं कर पाए। In between, suddenly, Principal Ma'am called, Surbhi, come here. You did something great with lot of good children even didn't do. यह पुरस्कार तुम्हारा है. This prize is for you. सब बच्चे एक दूसरे को देखने लगे. All the children were looking here and there. उनमें फुसफुसाहट शुरू हो गई. फुसफुसाहट का मतलब होता है धीमी आवाज में बात करना, टू विस्पर. They all started whispering. अरे यह तो बिल्कुल चुप रहने वाली लड़की है. अरे this girl is very quiet. कभी किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देती. She never answered anything. हमेशा गुमसुम रहती है. She always stay very quiet. ऐसा लगता है जैसे इसे कुछ भी नहीं आता. We used to think she doesn't know anything. अध्यापिका ने बताया कि खाने के बाद बच्चों ने रैपर, खाली बोतलें, फलों के छिलके आदि इधर उधर फैला दिए थे. Madam said that after eating food, all the children threw wrapper, empty bottles, the peel of fruits, they threw here and there. सुरभि ने सभी कागज, रैपर और छिलके आदि एक बैग में डाले और उसे कूड़ेदान में रख दिया. सुरभि collected all the wrapper, paper and peels of fruit and kept in a bag, and she threw that bag in a कूड़ेदान का मतलब होता है garbage bin, dustbin. उसने यह काम चुपचाप किया. She quietly did this work. और उसे खेलने के लिए समय भी कम मिला. For that, she even get very little time to play. बच्चों, अगर सुरभि स्वच्छता का ध्यान न रखती तो शायद तुम्हें आगे से पिकनिक पर नहीं जाने दिया जाता. Ma'am said, children, if Surbhi wouldn't take care of the cleanliness of that place, then probably you won't go to the picnic again. जहाँ भी जाओ वहाँ गंदगी मत फैलाओ. Wherever you go, don't throw all the things, don't keep that place dirty. यदि हर बच्चा इस बात का ध्यान रखे तो हमारी धरती स्वर्ग सी सुंदर हो जाएगी. If you all will take care of this, then our धरती, our earth will be like a paradise. सब बच्चों ने प्रण किया कि वे हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखेंगे. Everybody promised that they will take care of the cleanliness. स्वच्छता मतलब सफाई, क्लीनलीनेस, प्रण, संकल्प. वाव. मौखिक प्रश्न. सब बच्चे खुश क्यों थे? सब बच्चे पिकनिक जा रहे थे इसलिए बहुत खुश थे. अच्छा काम करने वाले बच्चे को क्या मिलेगा? अच्छा काम करने वाले बच्चे को इनाम मिलेगा. प्रार्थना सभा में प्रधानाचार्य ने बच्चों से क्या पूछा? प्रार्थना सभा में प्रधानाचार्य ने बच्चों से पूछा कि क्या सब बच्चों को मजा आया? पिकनिक कैसी रही?
अब पेज नंबर 97। यहाँ पर बच्चे कहाँ गए थे? बच्चे पिकनिक पर गए थे। अध्यापिका ने बच्चों को क्या समझाया? अध्यापिका ने बच्चों को समझाया था कि कोई भी बच्चा उन्हें तंग नहीं करेगा। बच्चों ने प्रधानाचार्य से क्या कहा? बच्चों ने प्रधानाचार्य से कहा कि उन्हें बहुत मज़ा आया और ऐसी पिकनिक हर सप्ताह होनी चाहिए। सुरभि ने क्या अच्छा काम किया? सुरभि ने सभी कागज़, रैपर और छिलके आदि एक बैग में डाले और उसे कूड़ेदान में रख दिया। हमें हर जगह सफाई का ध्यान क्यों रखना चाहिए? स्वच्छ स्थान पर ही स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर का विकास होता है। इसलिए हमें हर जगह सफाई का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ का मतलब होता है हेल्दी, शरीर का मतलब होता है बॉडी और मस्तिष्क का मतलब होता है ब्रेन। स्वच्छ स्थान पर ही स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर का विकास होता है। इट मीन्स इन अ क्लीन प्लेस, स्वस्थ मस्तिष्क, healthy brain and healthy body develops. That's why we need to keep our place very clean. अब पेज नंबर 98, 98। बच्चों को खाली स्थान में शब्द चुनकर, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान में भरिए। बच्चों को पिकनिक पर ले जाया गया। पिकनिक। जो बच्चा अच्छा काम करेगा उसको पुरस्कार मिलेगा। यदि ऐसी पिकनिक हर सप्ताह होनी चाहिए। सप्ताह। पिकनिक की मस्ती में सब बच्चे भूल गए थे। मस्ती का मतलब होता है फन एंड सुस्ती का मतलब होता है टायर्डनेस। सो एट पिकनिक दे हैड फन, मस्ती। सुरभि ने सभी कागज, रैपर, छिलके आदि एक बैग में डालकर उसे कूड़ेदान में रखा। बाल्टी में नहीं, कूड़ेदान। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। सब बच्चों को पिकनिक पर कैसे ले जाया गया? बस में बिठाकर, टैक्सी में बिठाकर, रेलगाड़ी में बिठाकर या रिक्शा में बिठाकर? बस में बिठाकर, राइट? यस। सुरभि कैसी लड़की थी? शरारती, हंसमुख, समझदार, बहुत बोलने वाली। समझदार means very intelligent. समान लय वाले शब्दों को मिलाइए means rhyming words. Rhyming in the sense which is coming in same rhythm, like खाना पाना, यहाँ वहाँ, इधर उधर, प्रश्न उत्तर, माता पिता, मच्छर और अच्छा। उदाहरण देखिए और पाठ में
शब्द ढूंढ कर लिखिए। जैसे कच्चा, यहाँ पर देखिए च और छ संयुक्ताक्षर है, तो सेम थिंग शुड बी इन योर नेक्स्ट वर्ड ऑल्सो। जैसे कच्चा या बच्चा या बच्चों, च एंड च। अध्याय, ध एंड य संयुक्ताक्षर शुड बी देयर, ध्यान। नमस्कार, आप बताइए नमस्कार के साथ पुरस्कार हो सकता है। स्वल्प, स्वल्प स्व, स्वच्छता स्वच्छ। आप अपने पाठ में ढूंढिए, यू सर्च these type of words in the lesson and write it down here yourself. समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। समान अर्थ वाले शब्द means similar meaning, which carry similar meaning, synonyms. जैसे पेड़, यहाँ पर वृक्ष। इकट्ठा, इकट्ठा का मतलब होता है एकत्र करना, कलेक्ट करना। माता, माँ। पुरस्कार, इनाम, इनाम मीन्स प्राइज। उदाहरण की तरह लिखिए, बकरी, एक अनेक। यू नीड टू राइट बकरी, बकरी या। मछली, मछली या। लड़की, लड़की या। गुड़िया, गुड़िया। ओनली चंद्र बिंदु, because already here छोटी की मात्रा is there. चूहिया, चूहिया। चिड़िया, चिड़िया। धन्यवाद। आप इस पाठ को कीजिएगा और सारे प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखिएगा। आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।